Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your teacher Yasser Mahmood. Our today's topic is reflection of sound, and then in reflection of sound we'll discuss reverberation and echo. So let's start our topic, that is reflection of sound. What is meant by reflection of sound? Actually by reflection we means bouncing back of something. Bouncing back of any object, anything is called reflection of that thing. So in case of sound, the bouncing back of sound from surface of any material, when sound strikes on the surface of any material, then some of the sound is absorbed in that material, some is transmitted from that material, and some is reflected back from the surface of that material. So by reflection we means the reflection back of the sound when it strikes on the surface of any material. So this is called reflection of sound. The bouncing back of sound when it strikes on the surface of any material is called reflection of sound. Now, if the sound strikes on hard surface, then it reflects more than absorption. And if the sound strikes on the soft surface, then most of the sound is absorbed in that surface, and very less amount of sound is reflected back. So it means that how much sound reflects from the surface, it depends upon the nature of the surface, whether the surface is soft or hard, whether it is smooth or rough. So mainly hard and soft surfaces differentiated. So if sound reflects from the hard surface, then it means more reflection takes place as compared to the absorption. If sound reflects from the soft surface, then it means less reflection takes place as compared to the absorption. For example, if a sound strikes on the wall, then wall is the hard surface, so very less amount of sound is absorbed in the wall, and most of the sound is reflected back from that wall. But if sound strikes on the we can say that pillows, etc., like these objects which are soft, then much absorption takes place and less reflection takes place. Okay, so what is meant by reflection of sound? The bouncing back of sound when it strikes on any material is called reflection back of sound. Similar to this example, for example, if we have a ball and if we throw this ball on the wall, then this ball comes back or bounces back towards us from the wall. This bouncing back of the ball is called reflection of the ball. So this bouncing back of the wall is called reflection of the ball. Similarly, when sound wave strikes on any material, then this wave reflects back, bounces back. This is called reflection of sound waves. If we talk about working principle of stethoscope, then what is meant by stethoscope? Stethoscope वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक होती है. सो लेस इंटेंस सिग्नल जो होते हैं, बहुत कम इंटेंसिटी के सिग्नल्स होते हैं, आपको सुनाई देने के लिए ये यूज़ होती है, उनको इंक्रीज़ करके उनके इंटेंसिटी को. सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि स्टेथोस्कोप जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो हम कहते हैं स्टेथोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. सो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. एक्चुअली इट इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ही आ रहा है, एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होगी. इसमें ये होता है कि ये जो आपने सेंसर वाली साइड यहाँ पे हार्ट के ऊपर रखते हैं, चेस्ट वाले पोर्शन में, तो उसमें ये होगा कि वहाँ पे जो लेस इंटेंस सिग्नल है, हार्ट बीट की जो साउंड है, वो इसको मिलेगी और वो उसको इंक्रीज़ करके स्पीकर के थ्रू एंड एक्सेट्रा एम्पलीफायर भी होगा, इंक्रीज़ करके यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर जो ट्यूब है, मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर ट्यूब में जो साउंड जाएगी वो इस ट्यूब की वॉल से रिफ्लेक्ट होते 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 दूसरे एंड तक पहुँचेगी और हमारे ईयर में स्टेथोस्कोप से हमें सुनाई देगी. तो यहाँ पे हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन को ऐसे शो किया हुआ है कि इसके अंदर जब साउंड इंटर होगी तो रिफ्लेक्ट होते 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 ऊपर ईयर वाली साइड पे आपके मूव करके चली जाएगी. सो स्टेथोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इसके अलावा आप रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि कोई बंदा जो कि इनसाइड द वाटर हो, लेट दिस इज़ वाटर, और इनसाइड वाटर कोई बंदा हो, लेट वो बंदा
पानी के अंदर है डाइवर जो है, तो बाहर जो आवाज़ें आप दे रहे हैं या आवाज़ लगा रहे हैं वो उसको बहुत कम सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी। उसकी रीज़न क्या है कि बाहर लेट्स सपोज यहाँ पे आप बोल रहे हैं आपस में, यहाँ पे आप बातें कर रहे हैं तो आपको तो बड़ी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, बट इस बंदे को आपकी बात समझ नहीं आएगी। इस बंदे को क्यों नहीं समझ आएगी? वो इसलिए नहीं समझ आए, अब इसमें देखें, आपको ऐसा भी लग सकता है कि साउंड पानी में नहीं, ऐसा नहीं है। साउंड पानी में ट्रेवल करती है, एंड इट ट्रेवल फास्ट इन वाटर एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अब देखें, एयर में स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मली 332 मीटर्स पर सेकंड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वाटर में भी 1400 टू 1500 मीटर्स पर सेकंड है। तो 332 बहुत कम है और 1500 बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स पानी में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है, बट साउंड इसलिए नहीं आएगी कि ऊपर से जो आवाज़ आपकी एयर में ट्रेवल करके आ रही है वो जब वाटर की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो मोस्ट ऑफ द साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो वाटर में इंटर बहुत कम साउंड होगी, इसलिए उस बंदे को जो कि पानी के अंदर, उसको आवाज़ इतनी अच्छी नहीं सुनाई देगी। सो इसको आप यहाँ से रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम के जो डोर्स और विंडोज़ हैं वो क्लोज़ हैं, बिल्कुल क्लोज़ हैं, तो आप वहाँ पे अगर कोई बात करते हैं तो आपकी बात बाहर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं जाएगी, बहुत हल्की हल्की आवाज़ बाहर पहुँचेगी। इसके बरक्स अगर आप डोर को ओपन कर दें तो उतनी ही इंटेंसिटी की साउंड जो है वो बाहर बहुत तेज़ी से सुनाई देगी। रीज़न ये होगी कि रास्ते में जो डोर था वो साउंड को क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब वहाँ पे डोर नहीं है तो साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और सीधी पास करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, सो दिस ऑल इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन में दो मेन केसेस आ जाते हैं, एक को हम बोलते हैं रिवर्बिरेशन और दूसरे को बोलते हैं इको। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्बिरेशन एंड इको, इसको देखते हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप यहाँ पे आप बात करते हैं, लेट्स सपोज आप अपनी बात कर रहे हैं कोई भी, तो आपके माउथ से आपकी साउंड जो है वो आपके ईयर तक पहुँचेगी। आपकी साउंड आपके माउथ से आपके ईयर्स तक पहुँचेगी, ऐसे इधर से ईयर्स तक पहुंचेगी, आपको सुनाई देगी। लेट सामने कोई ऑब्स्टेकल है तो आवाज़ आपको इधर से डायरेक्टली भी सुनाई दे रही है, आवाज़ यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आके भी सुनाई देगी। अब देखें, दो साउंड्स बन गई। एक तो ये हो गई जो यहाँ से जाके वापस आके सुनाई देगी, तो पहली कौन सी थी, जो आपको डायरेक्टली यहाँ से सुनाई दे रही थी, एक ब्लू एक रेड में शो कर दिया। अब देखें, पहले वाली तो आपको जो माउथ से ईयर डायरेक्ट सुनाई देगी वो बहुत जल्दी सुनाई देगी। उसके बाद जो दूसरी साउंड है वो इस ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके वापस आके सुनाई देगी। तो ये जो पहली आवाज़ सुनाई दे रही थी यहाँ पर 1, और जो दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही थी ये वाली आके 2, इन दोनों आवाज़ों के, पहली आवाज़ जब कान पे जाके स्ट्राइक करेगी ईयर ड्रम पे और दूसरी आवाज़ जब स्ट्राइक करेगी, इनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस तो होगा क्योंकि दूसरी आवाज़ दूर से वापस आई है। सो ये जो टाइम का डिफरेंस इनके बीच में होगा, अगर ये टाइम डिफरेंस लेस देन 0.1 सेकेंड मीन्स 10th पार्ट ऑफ सेकेंड से लेस हो, मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है इन दोनों साउंड्स के ईयर ड्रम पे पहुंचने का, इन दोनों साउंड्स में टाइम का डिफरेंस जो है ये सेकंड के 10 इक्वल पार्ट्स जो होते हैं उनमें से एक पार्ट से भी कम हो, मीन्स 10th पार्ट ऑफ सेकंड से भी क्या हो, कम हो, 1/10 ऑफ सेकंड से लेस हो, देन क्या होगा, देन आपके ईयर्स इन दोनों साउंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये सेपरेट साउंड्स है। आपका ईयर जो होगा वो उसको, हमारा ईयर सेम साउंड कंसिडर करेगा और ऐसा लगेगा कि पहले वाली आवाज़ ही थोड़ी ज़्यादा देर तक गूंज रही है और थोड़ी ज़्यादा देर तक हमें परसिस्ट करती हुई फील होती है। मीन्स उसका वॉल्यूम सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा और थोड़े ज़्यादा टाइम तक हमें फील होगा कि वो आवाज़ रह रही है। सो ऐसा नहीं होगा, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ हेलो तो उसके बाद हमें फिर सुनाई दे हेलो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा हेलो, तो थोड़ा सा वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती हुई या आपको ऊंची सी आवाज़ आ जाएगी थोड़ी नॉर्मल के मुकाबले में। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप वाल के करीब होके कोई बात करें ऊंची ऊंची, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको उसकी थोड़ी सी परसिस्टेंस सुनाई देगी। सो व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड इज़ नॉट हर्ड क्लियरली, when reflected sound is not heard clearly then it is called reverberation. This process is called reverberation, this sound is called reverberation. देखें, अगर reflected sound clearly सुनाई नहीं देती, or when we cannot distinguish between the original sound and the reflected sound एंड वी हेयर इट एज अ सिंगल साउंड, हमें वो सिंगल ही साउंड सुनाई दे, हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन ऑफ द साउंड। ये कब होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड टू स्ट्राइक ऑन ईयर ड्रम जो है, टाइम डिफरेंस उनके बीच में लेस देन 10th पार्ट ऑफ सेकंड होता है। और जब लेस देन 10th पार्ट ऑफ सेकंड दोनों साउंड्स के बीच में टाइम डिफरेंस होगा, देन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू साउंड्स, हमारे ईयर उन दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश
नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमें वो सिंगल साउंड ही सुनाई देगी, उनमें डिफरेंस हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब नॉर्मल जो आपका रूम होता है उसमें यही रिवर्बरेशन आपको सुनाई देती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी जो वॉल्स होती हैं रूम की वो आपसे बहुत करीब होती हैं, और जिसकी वजह से साउंड बहुत जल्दी आपके ईयर ड्रम तक वापस आ जाती है। अब रीज़न देखें क्या है। रीज़न ये है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर आप 0 डिग्री पे भी देखें तो ये 332 मीटर्स पर सेकेंड है एयर में। तो जब आप बोलते हैं तो एक आवाज़ डायरेक्टली आपको सुनाई देगी, दूसरी दीवार से मुड़ के आएगी, तो दीवार का डिस्टेंस भी कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है कि 332, या चलें उसका हाफ कर लें कुछ, क्योंकि आने जाने में डबल डिस्टेंस होगा, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा वाल तक आपसे। सो इसलिए हम ये कहेंगे कि साउंड जो होगी, जो वापस आएगी, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। अब जब बहुत जल्दी साउंड वापस आ जाएगी तो वो टाइम बहुत कम लेगी। जब टाइम बहुत कम लेगी तो ओरिजिनल और इस रिफ्लेक्टेड साउंड के ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करने के बीच में टाइम डिफरेंस लेस दैन 10th पार्ट ऑफ सेकंड अगर हो गया, देन हमें दोनों साउंड्स क्लियरली इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बल्कि रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली हमें सुनाई नहीं देगी, एक ही आवाज़ हमें फील होगी। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, अब देखें, लेट हम आसानी के लिए इसकी वैल्यू जो है 340 मीटर्स पर सेकंड ले लेते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको पता है 20 डिग्रीज पे होगी ऑलमोस्ट। सो 340 मीटर्स पर सेकंड अगर स्पीड ऑफ साउंड हो, और टाइम कितना होना चाहिए, टाइम हमने कहा 0.1 सेकेंड से लेस बनेगा। टाइम कितना बनेगा, टाइम 0.1 सेकेंड से लेस बन जाएगा इस केस में, देन रिवर्बरेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम 0.1 सेकेंड टाइम ले लें, वो हम इको के लिए लेंगे, चलें उसी केस में सॉल्व कर लेंगे। सो जस्ट यहाँ तक आपने देख लिया कि 0.1 सेकेंड से दो साउंड जो है ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड, उनके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करने के बीच में टाइम डिफरेंस इज़ लेस दैन 0.1 सेकेंड, देन वी कैन नॉट हियर रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली, देन दिस इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, देन व्हाट इज मेंट बाय इको, उसी के साथ मिलती जुलती बात है कि इफ़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड and the reflected sound to strike the eardrum is equal to 0.1 second or greater than 0.1 second, means if t is greater than or equal to 0.1 second, 0.1 second means 10th part of second, 0.1 second क्या है, 1/10th second, 10th of सेकेंड, 0.1 सेकेंड का मतलब है। अगर ऐसे हो देन वी कैन से दैट हमें आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, क्योंकि हमारे ईयर्स जो हैं वो दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब उनके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करने के बीच में टाइम डिफरेंस जो है इट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.1 सेकेंड हो, देन आप क्लियरली उसको सुन पाएंगे। इन इको द रिफ्लेक्टेड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड इको वी रिसीव्ड आफ्टर 0.1 सेकेंड आर ग्रेटर देन दिस टाइम and can be distinguished from the original sound. So what is meant by echo? Echo is the process in which we can echo is the sound, reflected sound that we can hear clearly when it strikes on eardrum. क्यों क्लियरली सुन सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड या इससे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है टाइम डिफरेंस, क्योंकि सोर्स जो कि बोल रहा होता है बंदा, उसके और ऑब्स्टेकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो साउंड के जाने और फिर आने में टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाता है, जो कि 0.1 सेकेंड से ज़्यादा या उसके इक्वल बनता है। दैट्स वाई ओरिजिनल साउंड और इसके बीच में टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा हो जाता है, और फिर हमें वो क्लियरली डिस्टिंग्विश हम उनके बीच में कर सकते हैं, ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। दिस इज़ कॉल्ड इको, तो इको इसको बोलते हैं। अब देखते हैं इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। सो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, उसको फाइंड करने के लिए हम इसको रेस कर देते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको फाइंड करते हैं, एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हमने एक फेमस इक्वेशन आपने फाइंड की होगी 9th ग्रेड में भी, s इज़ इक्वल टू vt, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब देखें स्पीड ऑफ साउंड को सिंप्लिसिटी के लिए हम 20 डिग्री वाली 340 मीटर्स पर सेकेंड ले लेते हैं। s इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेट 340 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम कितना चाहिए मिनिमम, दिस इज़ डिस्टेंस मिनिमम। मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा इको के लिए ताकि आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, तो टाइम कितना लगेगा 0.1 सेकेंड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 का पॉइंट काट के नीचे 10 लिखेंगे, 0 से काटेंगे तो 34 मीटर्स बनेगा। अब ये जो 34 मीटर्स है आप गौर से देखें, यहाँ पे अगर एक बंदा बोल रहा है, सोर्स है साउंड की, यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो इसकी आवाज़ यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस आने में टोटल जो टाइम लगाएगी उसकी बात हम करें, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी दैट विल बी 34 मीटर्स। तो जाने और आने में टोटल इनके बीच में कितना डिस्टेंस है,
इनके बीच में अगर डिस्टेंस x है तो x डिस्टेंस जाने में कवर करेगी और x आने में, टोटल हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से आपने x फाइंड करना है, तो फिर 2 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका हाफ लेना पड़ेगा। तो ये टोटल आने जाने का डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल अगर आप देखते हैं तो वो आपको मिलेगा डिस्टेंस मिनिमम फॉर इको, this is equal to 34 divided by 2, that is equal to 17 meters. So we can say that minimum distance for eco in air at 20 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है जो स्पीड ऑफ साउंड है, नहीं तो फिर उसके लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इन एयर एट 20 डिग्री इज बिटवीन सोर्स एंड दी ऑब्स्टेकल इज 17 मीटर्स। अगर सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में 17 मीटर का फासला होगा कम से कम, इससे ज़्यादा जितना भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर साउंड ऊंची रखनी पड़ेगी। सो कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस हो बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल, देन जो है वो आवाज़ आपके ईयर पे आके स्ट्राइक करेगी, तो ओरिजिनल और साउंड में आपके ईयर्स डिफरेंस कर सकेंगे। देन इट इज़ कॉल्ड इको। सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स इन एयर। मीन्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होता तो इधर कितनी वैल्यू लिखते हैं हम, 332 मीटर्स पर सेकेंड। 332 इंटू 0.1 लिखते तो वो वैल्यू हमें चेंज मिलती। ठीक है ना। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाला, तो ये हमने 20 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इको में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी आएगी, वो ये होगी, आपको ये बोला गया जाएगा कि एक बंदा जो है उसने कुछ बात की, शाउट किया, कुछ भी किया, तो दो हिल्स के बीच में वो खड़ा है, एक हिल से वापस आके उसकी आवाज़ उसको मिली लेट्स सपोज 1 सेकंड के बाद, दूसरे हिल से वापस आके उसको आवाज़ उसकी मिली लेट्स सपोज 2 सेकंड के बाद। तो स्पीड ऑफ साउंड आपको दे देते हैं, बोलते हैं जी आप इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करें। आप देखेंगे ये जो टाइम आपको दिया हुआ है, ये जो टाइम आपको दिया हुआ है, ये इको का टाइम है, इसके लिए ये डिस्टेंस इनके बीच का नहीं है बल्कि उसका डबल डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं इस डिस्टेंस को x लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे आप 2x इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, 2x इज इक्वल टू वी इंटू ये वाला टाइम लिखेंगे। या तो इस टाइम को हाफ कर दें, ये एक डिस्टेंस के लिए हो जाए, या तो इस डिस्टेंस को ही फिर 2 टाइम्स करके लिख दें, देन आपका ये रिजल्ट ट्रू होगा। क्योंकि ये जो टाइम है, दिस टाइम इज़ नॉट दैट टाइम जिसमें साउंड इस सोर्स से इस ऑब्स्टेकल तक पहुंची है, बल्कि ये वो टाइम है जिसमें सोर्स से ऑब्स्टेकल तक जाके वापस मुड़ के आई है साउंड। इट मीन्स ये डबल डिस्टेंस का टाइम है। या तो इस टाइम को आप हाफ करें और हाफ डिस्टेंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, या तो आप डिस्टेंस को ही डबल पुट कर लें, 2x या 2s लिख दिया करें, देन आपको रिजल्ट्स ठीक मिलेंगे। या तो इस तरह लिख देंगे, या तो s या x जो भी होगा इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2, ऐसे कर लें, ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो टाइम होगा ये डबल डिस्टेंस का टाइम होगा, आप सिंपली इस टाइम को हाफ कर दिया करें। तो टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू टाइम फॉर इको डिवाइडेड बाय 2। सो बाकी वही फार्मूलाज होंगे। लेट v इज इक्वल टू एस बाई टी है, तो s बाई जो t होगा ये आपने t बाई 2 करके हाफ करके फाइंड किया होगा। ठीक है, ये टाइम फॉर इको नहीं होगा, ये दूसरा टाइम होगा जो कि t इको डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसको आपने देख लेना है। क्योंकि इको के लिए टाइम जो होगा ना वो जाने और आने डबल डिस्टेंस का टाइम होगा, तो आप उसको हाफ कर दें तो आपको बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल जो डिस्टेंस है उसका टाइम मिल जाएगा। सो ये इको रिवर्बरेशन के कुछ पॉइंट्स थे जिसको अपने जहन में रखना है। दिस लेक्चर वाज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वी मीन्स the bouncing back of sound from the surface of any material when it strikes on the surface of any material. This is called reflection of sound, and you have seen that if the surface is hard one, then more sound reflects back as compared to the absorption, and if it is soft one, then more sound is absorbed as compared to the reflection. So in case of, there are two main cases of reflection, main types of reflection. One is echo and one is reverberation. For reverberation, the time to reach the sound at eardrum, original and the reflected sound at eardrum, the time difference between these two sounds should be less than 0.1 second. If time is less than 0.1 second, then our ear cannot distinguish between these two sounds and hear these two sounds as a single sound. So what is meant by echo? For echo, the time difference between the original sound and the reflected sound to strike the ear should be equal to or greater than 0.1 second, because if time is 0.1 or greater than this time difference, then our ear can differentiate between these two sound. Then हमें ऐसे सुनाई देगी like hello hello, तो ऐसे हमें आवाज़ सुनाई देगी separately. This is called
इको. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो रिवाइज दिस टॉपिक एंड राइट दिस टॉपिक ऑन योर नीट notebooks. Okay, thank you, goodbye.